میلاد النبی کے متعلق ایک سوال آیا ہے، ایک بہن والوں گروپ میں کیا ہے. کہتی ہیں کہ مفتی صاحب عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ بتائیے، اور وہ بھی حدیث سے بتائیے. اگر آپ کا سوال کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی منانے کے بارے میں حدیث سے بتائیے، تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ حدیث سے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اور یہی میرا جواب ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کا ثبوت ہی حدیث سے نہیں ہے، اور جب حدیث سے نہیں ہے تو منانے والے خود جانیں گے کہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور کیوں مناتے ہیں. عید کے مطلب ہوتا ہے خوشی. میلاد النبی کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا یہ تو مسلمانوں کا کہیے کہ فریضہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش نہ ہو تو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ جزو ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش ہونا. لیکن ایک ہوتا ہے جشن منانا اور اپنے طریقے پر اس کو عید کی شکل دینا، مذہب کے اندر یعنی کہیے کہ تہوار کی شکل دے دینا، یہ الگ بات ہے. ہمارے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بتائے ہیں، ہدایت کے زمانے اور خیر کے زمانے، وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ. خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی صحابہ کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو تابعین کے زمانے سے ملا ہوا ہے یعنی تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے. اور اپنے عمل کو، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر آیا کہ اپنے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملانا ہے، صحابہ کے عمل سے ملانے کی کوشش کرنی ہے، خیر اسی کے اندر ہے. یہ جو عید میلاد النبی ہے، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کبھی نہیں منائی. 23 سالہ نبوت کے بعد آپ کو 23 سال کی زندگی ملی، اور 23 سال کی زندگی میں صحابہ نے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا ہے. ایک ایک عمل کو باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کیا گیا. اس عمل کے اندر کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جنم دن منانے کی خوشی پر، اپنے جنم دن کی خوشی پر عید مناتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے نہیں پایا گیا. صحابہ اکرام 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خوشی نہیں منائے اس شکل میں یا کسی بھی شکل میں، یعنی پیدائش اور جنم دن نہیں منایا. صحابہ بعد میں صحابہ کا دور آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو، حضرت عمر کا زمانہ ہو، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، اور اس طریقے سے صحابہ کا خلافت راشدہ کا زمانہ ہو. کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تبع تابعین کے اندر نہیں ملتا ہے، محدثین کے اندر نہیں ملتا ہے، ائمہ کے اندر نہیں ملتا ہے. تینوں زمانوں سے اور بعد کے زمانوں سے اس کا کوئی ثبوت اور کچھ نہیں ہے. یہ 19ویں صدی کی ایجاد کرتا ہے، اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایجاد کرتا ہے. جشن کا طریقہ بہت الگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جشن منایا جاتا ہے، اور عبادت کی شکل دی جا رہی ہے اس کو. جب اس کو عبادت کی شکل اور عید کی شکل اگر دے دی جائے تو آپ خود انصاف کے ترازو میں اس بات کو رکھ کر دیکھیے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو عبادت کی ساری شکلیں اور ساری صورتیں لے کر آئے ہیں کہ کس عبادت کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے. عبادت یہ بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد عبادت نہیں ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بعض جو ہے ہمارے بریلوی خیال کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہیں منع نہیں کیا. منع نہیں کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت مل گیا کہ اس کو کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے اور یہ کہا کہ ان 5 نمازوں کو پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ 6ٹھی نماز داخل نہیں کرنا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم 6ٹھی نماز بھی پڑھیں گے، 7ویں نماز بھی پڑھیں گے، اور 7 نمازیں فرض سمجھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا.
दलील अगर आपकी ये है कि अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, तो मना तो इस बात से भी नहीं कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने किया या नहीं किया ये दलील बनती है। अल्लाह के नबी जिस काम को ना करे वो नहीं करने की दलील होती है। कि आप देखें कि सुबह की अजान, जब फजर का वक्त सुबह सादिक हो जाए, तो जब तक सूरज तुलू ना हो जाए उस वक्त तक अल्लाह के नबी ने कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। साहिब हिदाया जो हनफिया के नज़दीक बड़े आलिम हैं और इनकी किताबें आलमियत के कोर्स में पढ़ाई जाती है, चाहे बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हों, अहले हदीस हों या फिर देवबंदी हो, ये सब इस किताब को पढ़ाते हैं और इनके मसाइल पर लोग इत्तेफाक रखते हैं, बरेलवी भी और देवबंदी भी। इनके यहाँ एक उसूल है, आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सुबह सादिक से लेकर तुलुए फज्र तक, तुलुए शम्स तक यानी सूरज निकलने तक 2 रकात सुन्नत पढ़ी, इसके अलावा कोई नफल नहीं पढ़ा। अब कोई आदमी नफल पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। दलील क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। इस तरीके से ईद के दिन जब इशराक का वक्त जब तक ना हो जाए, यानी ईद की नमाज जब तक ना पढ़ ले आदमी, कोई नफल नहीं पढ़ सकता। यानी इशराक के वक्त में इशराक भी नहीं पढ़ सकता जो रोजाना का मामूल है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब नवाफिल की पाबंदी करने वाले थे, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा। यही दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को नहीं किया उसको नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो हालात के पेश नज़र किए जाते हैं तो लोग उसको दलील बना देते हैं। कि एक साहब को आज ही कल सुना गया कि वो ईद मिलादुन नबी की फजीलत बयान करते हुए उसको साबित करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिरयानी नहीं थी तो बिरयानी क्यों खाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फला चीज़ नहीं थी तो क्यों करते हो, हवाई जहाज़ नहीं था तो क्यों चढ़ते हो। तो ये ज़माने के हालात के एतबार से हम इबादात की बात कर रहे हैं। उनको ये बात समझनी होगी कि इबादात के अंदर असल मना है, इबादात के अंदर असल शरीयत का हक होता है। शारे अल्लाह खुद बताए या अल्लाह के नबी खुद बताए तो फिर वो इबादत बनती है। और हम और आपको ये अल्लाह ने मकाम और हैसियत नहीं दी कि हम इबादत बनाएं। खुद से इबादत के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। अक़ल से आपकी इबादत साबित नहीं होगी। अक़ल से अगर इबादत साबित होती, शरीयत को समझना होता, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर शरीयत में ज़र्रा बराबर भी अक़ल का दखल होता तो आदमी जो मोज़ा पहनता है उसके ऊपर सर्दी के मौसम में जो मसा करता है, कहते हैं कि मसा यहाँ होना चाहिए नीचे के हिस्से में, क्योंकि चलने से पैर का नीचे का हिस्सा गंदा होता है। लेकिन मसा यहाँ करते हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मसा करने का सिखाया कि जो हिस्सा गंदा नहीं है यहाँ मसा करो और यहाँ की सफाई करो और पाकी समझो अपने आप को कि मेरा वुज़ू हो गया है, अगरचे यहाँ गंदा हो, अगरचे यहाँ धूल जमे हुए हो। यानी शरीयत के अंदर अकल नहीं चलती है। शुक्र मनाते हैं लोग, ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का हम शुक्र मनाते हैं। तो शुक्र का ये क्या तरीक़ा है? शुक्र तो हर एक मोमिन बंदा जब सजदे के अंदर जाता है तो ये शुक्र ही होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कोई आदमी बुत के सामने नहीं झुक रहा है, पत्थरों के सामने झुकने से, दरख्तों के सामने झुकने से अल्लाह के नबी ने हमें बचाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर है, उनका शुक्र है कि हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। तो एक मोमिन बंदा तो हर इबादत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र बजावर होता है कि उन्होंने, उनकी बरकत से हमें ईमान की दौलत मिली है। शुक्र का ये तरीक़ा नहीं है कि जश्न मनाया जाए, जुलूस निकाले जाए और मिलाद मनाया जाए, इस तरीक़े से खिचड़ा बनाया जाए, खाने पकाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए हैं, इस तरीके से हमारे लिए एक नेमत बनकर आए हैं। शुक्र का जिस तरीके से किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी का, मेहमान जब किसी घर में आता है तो घर के 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं। मौलाना इलियास घुमन साहब दावत बरकातहू समझाया, बहुत अच्छे से इस मसले को उन्होंने समझाया कि जो बड़े लोग होते हैं तो मेहमान, अगर किसी घर में कोई आलिम आ जाए, कोई बड़ा मुफ्ती आ जाए, तो जो बड़े लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आखिर मौलाना साहब मेरे घर में क्यों आए, मुफ्ती साहब मेरे घर में क्यों आए। पहले उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो और उनके मंशा को समझने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे होते हैं तो वैसे ही अल्लाह उसको, मेहमान को देख के खुश हो जाते हैं कि चलो आज मेहमान आया है, आज मेरे घर में कुछ अच्छा खाने के लिए बन जाएगा। तो इनका ताल्लुक इसी बचकाने से है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से हो जा रहा है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए तो किस मंशे के साथ आए, उस मंशा को सहाबा ने समझा, एक एक सुन्नत को किस तरीके से अमल किया है, लेकिन कभी इन चीज़ों को ईजाद नहीं किया है।
12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, इस पर भी तो सवाल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में, क्योंकि तारीख तो लिखी नहीं जा रही थी उस वक्त में, लेकिन एक तखमीना अंदाज़ा लगाया गया। बाज़ लोगों ने कहा कि 1 तारीख को आपकी पैदाइश हुई, बाज़ ने कहा 2 तारीख को रबीउल अव्वल की, बाज़ ने कहा कि 8वीं तारीख को, बाज़ ने कहा कि 12वीं तारीख को। 12वीं तारीख को ज़्यादा सही माना गया है, लेकिन बाकी को गलत नहीं माना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में भी मसला यही कि आपकी वफ़ात कब हुई। एक कौल के मुताबिक आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को ही हुई। अब अगर हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी, खुशी का दिन मना रहे हैं, मुमकिन है कि ये खुशी का दिन ना हो, अल्लाह के नबी की पैदाइश का दिन ना हो, फिर क्या हुआ? अगर मुमकिन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही वफ़ात का दिन हो गया, चूँकि यकीनी कोई बात नहीं, अगर वफ़ात का दिन हो गया तो फिर ये खुशी कैसी? और खुशी के लिए मुसलमानों को तो बहुत सारी नेमतें मिली हैं। बैतुल्ला फ़तेह मक्का की नेमत है, फ़तेह मक्का के बदले में हमें बैतुल्ला जैसी अजीम दौलत मिली है। फ़तेह मक्का पर भी खुशी मनाए आदमी, जब ऐसे ही करना है तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए हैं तो दीन के वजूद में आने का, फैलने का एक ज़रिया बनाया, तो हिजरत पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाई जाए। क्या अपने से, यानी ये दीगर कौमों की तरह, जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं क्रिसमस के मौके पर, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से मना किया है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसी कौम, उसी जमात में से हो जाता है। तो हम ईसाई की मुशाबहत थोड़ी इख्तियार करेंगे नबी का जन्मदिन मनाकर। कितनी शर्म की बात है, बेहयाई की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर आपने सुलह के ऊपर अपना नाम लिखवाया था, हज़रत अली ने लिखा था। मौका ये आया कि आपके नाम को काटने की ज़रूरत पड़ी। काफिरों ने यह कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं चलेगा इस पर्ची के अंदर, इस नाम को काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। अल्लाह के हज़रत अली को कहा कि आप इस नाम को काट दें, कि कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रत अली कहते हैं कि मैं इस नाम को काटने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, मैं इस नाम को नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बताओ कहाँ पे लिखा है, क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने को बताया कि यहाँ लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने कलम से उसको काट दिया। लेकिन हज़रत अली ने नहीं काटा। ये हैप्पी बर्थडे बनाने वाले, जो केक के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हो, ऐसी जगह में अपने हाथों से छुरी चलाते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले कभी नहीं हो सकते। इनसे पूछना है सिर्फ एक मसला, अगर कोई आपको बताए तो सिर्फ ये पूछिए कि ये ईद जो है, जिस तरीके से हमें अल्लाह के नबी ने दूसरी कौमों के मुकाबले में 2 ईदें दी। मदीना में अल्लाह के नबी ने देखा कि लोग खुशी मनाते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 ईद का मौका दिया, एक बकरा ईद और एक ईद उल अज़हा। तो 2 ईदें दी। इस 2 ईद के अलावा जो तीसरी ईद, जिसका सबूत कहीं नहीं है, आग बरगे इस ईद को मनाते हैं, तो सिर्फ 2 टोक सवाल का जवाब दीजिए कि ये ईद आपका शरई है या गैर शरई। अगर शरई है तो आप सबूत दीजिए, और गैर शरई अगर है तो फिर हम इसे क्यों मनाएं।